How many of you have the knowledge on JavaScript? Just feel free guys to reply. So let's have some interactive sessions so that it will be easy for us to even share our knowledge. Okay, just feel free. Just wanted to know if you have the knowledge. If you have the knowledge, that's great. If you don't have the knowledge, it's fine, no problem. Anyways, we will start with the JavaScript. So no worries. Just I wanted to know how many of you have the knowledge on JavaScript. Okay, Shikesh has some basic knowledge on Java. Okay. Okay, how many of you have the knowledge on HTML and CSS? So totally we are here almost 10, right? 10 members. So I'm expecting 10 replies. HTML, CSS. Great, great. So people are replying. Okay. So you guys don't have that much knowledge on JavaScript, right? So even if you have the basic knowledge, it's fine. Anyways, we will start from the basics and we will cover all those concepts that are required for your React. So don't worry, even if you don't have any knowledge on JavaScript, it's fine. I'm sure that once you have done with your course, you will be easily able to crack any JavaScript interviews or React interviews. Only the thing you guys have to practice. Whatever we are going to teach in the sessions, you guys have to practice it. Okay. So let me share my screen. Yeah. I hope my screen is visible, right? So the basic requirement for learning the React JS is you should know HTML, CSS, and JavaScript. That is the basic prerequisite. So if you want to learn React, you should know HTML, you should know CSS, you should know JavaScript. This is the basic requirement. But for our course, we are not uh, I mean, even if you don't have the knowledge on JavaScript, it's fine because I'm expecting you should have the knowledge on HTML, CSS. Not like you should be expert. Even if you have the basic knowledge, if you know what are the tags, if you know what are the CSS properties, how to use that, that's more than enough. And anyways, we are going to start from the JavaScript. So we will cover all those concepts of JavaScript that is required for React JS. Okay, so it doesn't mean that you should not focus on other concepts of JavaScript. You have to focus on other concepts of JavaScript. For that I will give you complete resource from where you can get what concepts you have to focus for interview, like that. But if you apply any jobs for React, in that interview whatever questions they can ask from JavaScript, that everything we will cover. Because in interviews, if it is a React interview, obviously they are going to ask the JavaScript questions. The questions will start from JavaScript. First they will check, do you have the knowledge on JavaScript or not? If you answer that questions, then only they will start asking the questions in React. So that's why we will cover all those topics which are required for React. Okay, so any doubts in this? Just feel free guys to chat. If you have any doubts, just let me know. No, sir. Great. Okay, just me. Yeah, so I hope you can see my screen, right? Yeah, Faizan, tell me something you wanted to. या हिंदी में भी पढ़ाऊंगा. सो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा. सो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आता है, और यहाँ पे जितने लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता, आई मीन दिक्कत होता है थोड़ा सा समझने में इंग्लिश. ओके, बट फैजान स्लोली स्लोली यू हैव टू इम्प्रूव ऑन इंग्लिश ऑल्सो. इसलिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा क्योंकि कल इंटरव्यू जाओगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, और हर कंपनी चाहेगा कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. ओके, सो आप क्या करें, स्लोली स्लोली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें इंग्लिश में.
ताकि तुमको इंटरव्यूज में या कई अच्छे कंपनी में अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, इट्स फाइन, नॉर्मल, हम इंडियन से तो ऑब्वियसली हम इतने परफेक्ट नहीं होते इंग्लिश में, बट यस, बेसिक इंग्लिश अगर हमें आ जाए तो दैट्स मोर देन इनफ टू सर्वाइव इन एनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, ग्रेट। सो मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ाऊंगा। जहां तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या कोई इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आया, जस्ट फील फ्री टू पिंग मी सो दैट मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, सो दिस इज द प्री रिक्वेजिट, बिकॉज हमें पहले सीखने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नॉलेज चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। इसलिए मैं बस इसलिए बोल रहा था कि अगर रिएक्ट जेएस तुम्हें सीखना है तो तुम्हें एटलीस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, वो प्री रिक्वेजिट है, मैंडेटरी है। बट इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट अगर आपको नहीं आता तभी चल जाएगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करने वाले। बट आपको एटलीस्ट HTML CSS आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि HTML CSS में आप एकदम परफेक्ट रहो। आपको अगर HTML CSS का 50% भी आता है या 40% आता है, बेसिक नॉलेज है, तो इट्स इनफ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट। वो स्टार्ट करने के लिए इनफ है, बट रिएक्ट के साथ आपको स्लोली स्लोली इसको भी अपग्रेड करना चाहिए। और वैसे HTML CSS पढ़ने में आपको ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 वीक इज मोर देन इनफ। आप जल्दी से पढ़ के उसको सीख सकते हो। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट्स इन दिस नाउ, इन प्री रिक्वेजिट? कुछ बोलना है किसी को? ओके, जस्ट फील फ्री गाइस टू रिप्लाई ऑन द चैट्स सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा, राइट? सो लेट्स हैव सम इंटरैक्टिव सेशंस। ओके, सो मुझे ये बताओ कि हम रिएक्ट जेएस तो सीखेंगे, सो फाइनली तुम रिएक्ट जेएस सीखने के बाद क्या डेवलप करोगे? व्हाई यू आर लर्निंग रिएक्ट जेएस, या आप रिएक्ट जेएस क्यों पढ़ रहे हो? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? Don't say I want to get the job. Okay, that answer is not allowed. So you have to be little bit technical. So आपको टेक्निकली सोचना है। अब आपको एज अ स्टूडेंट नहीं सोचना है, आपको ऐसे सोचना है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो आपको अभी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आप अब स्टूडेंट नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स सीख रहे हो। सो नाउ यू आर लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। So now you have to start thinking like a software developer. Okay, so कोई बता सकता है हम रिएक्ट जेएस क्यों सीख रहे हैं? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है रिएक्ट जेएस सीखने का? क्योंकि पहले हम कुछ सीखने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले इस टेक्नोलॉजी से। अगर हमने टेक्नोलॉजी सीख लिया तो हम क्या करेंगे? वी शुड नो दैट अल्टीमेट गोल। ओके, मेक अट्रैक्टिव वेबसाइट्स। रवि ने आंसर दिया। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग गाइस। जो आपको पता है वो बोलो, राइट रॉन्ग वो मत सोचो। मैं तो बोलता हूँ रॉन्ग आंसर भी बिंदास बोलो। अभी तुम लर्निंग स्टेज पे हो, ठीक है? यहाँ पे मैं कोई जॉब नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। तो बिंदास जो मन में आया बोल दो, जो आंसर तुमको पता है बोल दो। वो रॉन्ग है राइट है वो सोचो मत, बोलना स्टार्ट कर दो। जो जो आज तुमको पता है बोल दो। सो अभी तक मुझे एक ही आंसर मिला है। आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर। ओके, दैट्स ग्रेट। Faizan, you started answering in English, huh? So slowly, yeah, you can start like that. Okay, our target should be applying the jobs in very good companies, so where you will have some US clients or UK clients, right? So if you want to communicate with your US clients or UK clients, you have to be good with English. So it's okay अगर इंग्लिश नहीं आता है तो हम स्लोली सीखेंगे। हमें कौन सा कल जाके जॉब करना है ना, अभी बहुत सारा टाइम है, तो आराम आराम से सीखेंगे। और वो हमारा लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप स्लोली आपका स्किल्स बढ़ते जाएगा। ओके, सो हमारा मेन इंटेंशन टू लर्न जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस फाइनली टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन। मींस फाइनली वी आर गोइंग टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन with the help of this React. But can we develop entire web application with React? Answer is no. पूरा वेब एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते। वेब एप्लीकेशन का एक पार्ट डेवलप कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस। बट हमारा अल्टीमेट गोल है कि एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करना।
कोई कंपनी तुम्हें हायर क्यों करता है? रिएक्ट, वो बोलेगा कि हमको रिएक्ट का डेवलपर चाहिए, तो रवि कैन यू डेवलप अ रिएक्ट, कैन यू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन विद अस? रवि बोलेगा यस आई कैन डेवलप, बट रवि पूरा वेब एप्लीकेशन थोड़ी डेवलप करेगा, उसको सिर्फ रिएक्ट आता है, तो ही विल जस्ट डेवलप ओनली अ पार्ट ऑफ दैट वेब एप्लीकेशन। सो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि इस वेब एप्लीकेशन में रिएक्ट कहां पे यूज होता है, व्हाई वी हैव टू यूज रिएक्ट और वेयर वी हैव टू यूज द रिएक्ट। सो बिफोर दैट कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? हमें पता तो चल गया कि हम रिएक्ट जेएस से वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, बट ये वेब एप्लीकेशन होता क्या है? व्हाट इज दिस वेब एप्लीकेशन? एनीवन हैव द आंसर? कपिल, अब्दुल्ला, पूर्णिमा, एनीवन हैव द आंसर? आदित्य, बता दो जो पता है आपको, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? आपके हिसाब से वेब एप्लीकेशन क्या है? चलने दो, एग्जाम्पल बता दो मुझे कोई भी वेब एप्लीकेशन का जो आपको पता है कि हाँ ये वेब एप्लीकेशन, एग्जाम्पल बता दो कोई भी वेब एप्लीकेशंस के। ओके, राइट। हम सबने वेब एप्लीकेशन यूज किया है, राइट? डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन। तो कोई बता सकता है वेब एप्लीकेशन क्या होता है? एग्जाम्पल दे दो जो भी पता है आपको, हाँ ये वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन है ऐसे। हम्म हम्म ओके, यार कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, ये सब वेब एप्लीकेशन है, हर एग्जाम्पल से वेब एप्लीकेशन के। ओके, सो टेक्निकली तुम्हें बताता हूँ वेब एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, इट इज अ एप्लीकेशन, it is a application which is installed in centralized system and can be accessed can be accessed to internet or over internet. What is web application? वो एक application है, it is a application which is installed in centralized system. So what do you mean by centralized system? Centralized system का मतलब क्या है? कोई एक सिस्टम में समवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे एक सिस्टम है, कहीं पे, कहीं यूएस में है कि कहीं मुंबई में है, कहीं पे एक सिस्टम है, वहां उस सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है सर्वर। ओके, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। यू हैव जस्ट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। अब ये सिस्टम कहां पर है? कहीं पे दुनिया में कहीं पे तो है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ये मुंबई में है। ओके, और हम कहां पर है? फॉर एग्जांपल हम अमरावती में है या नागपुर में है या कोई दिल्ली में है, कहीं पे है। नाउ ही इज गोइंग टू एक्सेस दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को वो यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? थ्रू इंटरनेट। सो कोई भी एप्लीकेशन को आप इंटरनेट से एक्सेस करोगे, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। Any application which you can access through internet, such applications are called web application. और इस एप्लीकेशन को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। आपको दो चीज चाहिए, एक ब्राउजर चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए, तभी आप एक वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो किसी अगर कोई पूछा वेब एप्लीकेशन क्या है, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन को हम हमारे सिस्टम से थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। So in English, if I want to tell, it is a software or it is an application which is installed in one centralized system and which can be accessed over internet. Now such applications are called web applications. So what are the examples of web applications? You have one is like Amazon. You have something called Facebook, Flipkart. You have Instagram.
So all these applications are examples of your वेब एप्लीकेशंस. सो जो भी ये सारे एप्लीकेशन को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें क्या जरूरत है, हमें इंटरनेट चाहिए ना. विदाउट इंटरनेट हम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते अगर मोबाइल लैपटॉप से एक्सेस करना है. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट. वेबसाइट का मतलब कुछ नहीं है, ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन तुमने इंस्टॉल किया है ना, किसी एक प्लेस पे इंस्टॉल करते हो. इसको इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें एक स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए. ओके, उस स्पेस को हम वेबसाइट बोलते, और कुछ नहीं. ये एप्लीकेशन को अगर तुम्हें इस सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो इस सिस्टम में कुछ स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा. वो स्पेस का जो एड्रेस होता है ना, उसको हम वेबसाइट बोलते, और कुछ नहीं. ओके, सो वेबसाइट इज जस्ट एड्रेस वेयर योर एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड. वेब एप्लीकेशन इज योर एक्चुअल एप्लीकेशन. इज इट क्लियर, ऋषिकेश? Yes, sir. Yeah, great. So just feel free, guys. You can unmute yourself. You can ask question. Once you have done with your question, just mute yourself. That's it. So just feel free, because we are just, I think, just 15 to 20 members. So we can communicate with the voice also, no problem. If you feel, if you want to chat, you can chat. That's totally your wish, how you want to go. Okay. So this is what. So first, what we try to understand before starting with React, what knowledge should we have? Then we came to know, okay, HTML CSS are more than enough. HTML CSS हमारे लिए काफी है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से पढ़ने वाले. ओके, फिर हम ये सोच रहे थे कि हम React JS पढ़ के या सीख के क्या करेंगे. What is the use of that React JS? To develop a web application. So हम React JS सीख के फाइनली एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे. ठीक है, तो ये वेब एप्लीकेशन होता क्या है? सो वेब एप्लीकेशन होता क्या है? एक एप्लीकेशन कहीं पे इंस्टॉल्ड है और उस एप्लीकेशन को अगर हमें एक्सेस करना है तो थ्रू इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी एप्लीकेशन को अगर तुम थ्रू इंटरनेट एक्सेस करोगे, उस एप्लीकेशन को हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं. सो एनी एप्लीकेशन विच इज इंस्टॉल्ड इन सम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम and you are accessing that application through internet, such applications are called web applications. Done. So what are the examples of web application? आपका Amazon हो गया, Facebook हो गया, Flipkart हो गया, Instagram हो गया. Instagram is the best example that they have developed this entire Instagram using React.js. Facebook ने Instagram को पूरे React.js में डेवलप किया है. तो Instagram हमारा ऐप भी है, एक ऐप, मोबाइल ऐप भी है और एक वेब एप्लीकेशन भी है. सो Instagram का जो वेब एप्लीकेशन है ना, वो React.js में डेवलप किया है, और उसका जो ऐप है ना, जो हमारे मोबाइल में हम इंस्टॉल करते हैं, वो रिएक्ट नेटिव में डेवलप किया है. ओके, ऐसे बहुत सारे कंपनी, इवन गूगल इज यूजिंग रिएक्ट, योर Amazon यूजिंग रिएक्ट, हर कोई यूज करता है React.js. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ. अभी के लिए सबसे ज्यादा डिमांडिंग लाइब्रेरी रिएक्ट है. इवन अगर आप एंगुलर से कंपेयर करोगे तो रिएक्ट ज्यादा डिमांड पर है एंगुलर से भी. सो अभी रिएक्ट नंबर 1 पे चल रहा है. ठीक है, डन. सो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमें वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है. बट जैसे मैंने कहा, पूरा वेब एप्लीकेशन हम डेवलप नहीं कर सकते रिएक्ट से, उसका कोई एक पार्ट डेवलप कर सकते. तो उसका वो पार्ट समझने के लिए पहले हमें ये वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, अ बेसिक आर्किटेक्चर. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सपोज ये हमारा वेब एप्लीकेशन है. ओके, नॉर्मली कोई भी वेब एप्लीकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 सब एप्लीकेशंस, या मैं बोल सकता हूं 3 कंपोनेंट्स. एनी वेब एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एप्लीकेशंस और 3 सब पार्ट्स और 3 सब कंपोनेंट्स. अगर हम इसे अगर एंटायर वेब एप्लीकेशन बोलेंगे, then this web application is divided into 3 parts. So what are that 3 parts? First हम बोलते हैं इसको client side application. फिर हमारे पास आता है सर्वर साइड एप्लीकेशन, ये है सर्वर साइड एप्लीकेशन. फिर और एक पार्ट होता है, वो होता है डेटाबेस. दिस इज योर डेटाबेस. सो एक वेब एप्लीकेशन, वन वेब एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स.
Okay, one web application is divided into three parts. First part we will call as a client side. Next one is like server side, and one more is like your database. So one web application is divided into three sub applications. So what is the purpose of this client side? ये client side हम क्यों यूज करते हैं? ये client side application हम क्यों डेवलप करते हैं? ये client side application हम यूजर इंटरफेस बनाने के लिए डेवलप करते हैं. So the client application is used to develop user interface. अब user interface का मतलब क्या है? Whatever you are seeing on the browser, everything is user interface. जहां एक यूजर कम्युनिकेट कर सकता है उस सॉफ्टवेयर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी ब्राउजर ओपन कर दूं, यहाँ पे आप देखो कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई कार्ड जैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको और एक कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ बटन दिख रहा है. ये इसको सबको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं. या मैं अगर फेसबुक का ओपन कर दूं, facebook.com, ये लॉगिन पेज है. अब ये लॉगिन पेज पे आप क्या देख रहे हो? टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो, बटन देख रहे हो, कोई लिंक देख रहे हो, कुछ टेक्स्ट देख रहे हो. ये सब क्या है? ये सब यूजर इंटरफेस है. तो ये यूजर इंटरफेस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? ये यूजर इंटरफेस हम ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में डेवलप कर सकते हैं. तो इस क्लाइंट साइड एप्लीकेशन में हम यूजर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं. अगर ये यूजर इंटरफेस डेवलप करना है या ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है, तो हमें कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए. वी रिक्वायर सम लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज. व्हाट आर दे? सो हमें अगर यूजर इंटरफेस या क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये मैंडेटरी, ये बेसिक मैंडेटरी है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी रिक्वायर्ड रिएक्ट और वी रिक्वायर्ड एंगुलर और वी रिक्वायर्ड something called Vue.js, etc. बहुत सारे 100+ frameworks libraries है to develop this client side. इसी तरीके से ये सर्वर साइड एप्लीकेशन है. तो ये भी एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. ये सर्वर साइड एप्लीकेशन क्यों डेवलप करते हैं? मींस फॉर डीलिंग विथ योर बिजनेस ऑपरेशन. What do you mean by बिजनेस ऑपरेशन? बिजनेस ऑपरेशन का मतलब है आपके बिजनेस का जो भी ऑपरेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक लो. सो फेसबुक के लिए बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? कोई पोस्ट करना, कोई यूजर अपना अकाउंट बनाना, कोई यूजर लाइक करना, कोई यूजर किसी को मैसेज करना, कोई यूजर अपना डिटेल्स को अपडेट करना. ये जो भी ऑपरेशन यूजर परफॉर्म कर रहा है, ये सारे ऑपरेशंस फेसबुक के लिए बिजनेस ऑपरेशन है. इसी तरीके से अगर मैं आईबीएस का इंस्टीट्यूट लेता हूं, तो आईबीएस का ऑपरेशंस क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना, स्टूडेंट्स का डिटेल्स लेना, राइट, स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे अपडेट करना, या वो लोग जो कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसके डिटेल्स बताना. ये सारा ऑपरेशन का काम है. सो ये सब कोई भी कंपनी का अगर तुम्हें बिजनेस ऑपरेशन को डील करना है या उसके लिए कुछ कोड लिखना है, तो वो कोड हम सर्वर साइड एप्लीकेशन में लिखते. ओके, वो सारा कोड हम सर्वर साइड एप्लीकेशन में लिखते. अगर ये एप्लीकेशन हमें डेवलप करना है, अगेन वी रिक्वायर सम सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज. सो व्हाट आर दैट? वन इज नोड एक्सप्रेस. आप नोड एक्सप्रेस से ये सर्वर साइड डेवलप कर सकते हो, या आप स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हो. स्प्रिंग बूट के लिए हम जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और ये नोड एक्सप्रेस के लिए हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करते हैं. इसी तरीके से आपके पास Django है और Django, इसके लिए हम पाइथन यूज करते हैं. इसी तरीके से यू हैव समथिंग कॉल्ड Laravel. यहाँ पे हम PHP लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और वी हैव ASP.NET MVC, जहां पे हम C# लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. तो ये सारे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, कोई भी एक चाहिए ये सर्वर साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. और यहाँ पे भी ये तीन तो मैंडेटरी है. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तो मैंडेटरी है, नो डाउट्स उसमें. उसके अलावा आप किसी का हेल्प ले सकते हो. लाइक आप रिएक्ट के साथ डेवलप कर सकते हो,
या एंगुलर के साथ डेवलप कर सकते हो या Vue.js, कोई भी एक चाहिए, बट ये 3 मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो कोई एक चाहिए, जरूरी नहीं कि सब यूज करना है, कोई एक चाहिए। और उसी तरीके से मोंगोडीबी, सॉरी, डेटाबेस, डेटाबेस का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, कोई भी कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको स्टोर करना। जैसे फेसबुक के लिए डेटा क्या हो गया? यूजर्स के डिटेल्स, यूजर कितने यूजर ने अकाउंट किया वो डिटेल्स, और एक यूजर का उसने क्या क्या डेटा उसमें इंसर्ट किया, उसका इमेजेस, उसका प्रोफाइल डिटेल्स, वो सब क्या है? डेटा फॉर फेसबुक। उसी तरीके से हर कंपनी का कुछ ना कुछ डेटा होता है, वो सारा डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। सर्वर साइड में उस कंपनी का जो भी ऑपरेशंस रहता है वो हम डील करते हैं। क्लाइंट साइड में उस कंपनी के लिए जो भी यूजर इंटरफेस दिखाना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना है, उसके लिए हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं। तो ये यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हमें रिएक्ट, एंगुलर या व्यू कोई भी एक चाहिए। उसी तरीके से ये सर्वर साइड का बनाने के लिए हमें इनमें से कोई एक चाहिए। उसी तरीके से वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस, हम कोई भी एक डेटाबेस यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ओरेकल है, वी हैव समथिंग लाइक एसक्यूएल सर्वर, वी हैव समथिंग लाइक मोंगोडीबी, फिर उसके बाद हमारे पास माई एसक्यूएल है। आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सब सब यूज करना है, कोई भी एक यूज कर लो। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर। ओके, सो दिस आर द टेक्नोलॉजीज टू डेवलप ऑल दिस एप्लीकेशंस। मतलब एक एप्लीकेशन, वन वेब एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एप्लीकेशंस: क्लाइंट साइड, सर्वर साइड एंड डेटाबेस। क्लाइंट साइड डेवलप करने के लिए ये चाहिए, सर्वर को डेवलप करने के लिए ये चाहिए, और इसमें से कोई भी एक हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं। जो पर्सन या any developer who can develop this client side application using this any one of these technologies, जो डेवलपर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है ये सारे टेक्नोलॉजी यूज करके, सच डेवलपर्स आर कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपर्स। Such developers are called front-end developers. Now the people who can develop this server-side application using any one of this technology, उन्हें कोई एक टेक्नोलॉजी आना चाहिए जिससे वो सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते। Such developers are called back-end developers. डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं सॉफ्टवेयर, लाइक फ्रंट एंड इंजीनियर, कोई बैक एंड इंजीनियर बोलता है, कोई फ्रंट एंड डेवलपर बोलता है, कोई बैक एंड डेवलपर बोलता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। और उसी तरीके से जो ये डेटाबेस से डील कर सकता है, जैसे कोई डेटा को अपडेट करना, कोई डेटा को डिलीट करना, न्यू डेटा इंसर्ट करना, ये डेटा के बीच में रिलेशनशिप रखना, ये डेटा को ये डेटा से कनेक्ट करना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करता है उसे हम डेटाबेस डेवलपर बोल सकते हैं या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, डीबीए। ओके, सो बहुत क्लियर है। जो बंदा ये क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है उसे हम फ्रंट एंड बोलेंगे, जो सर्वर साइड डेवलप कर सकता है उसे हम बैक एंड बोलेंगे, और जो डेटाबेस डेवलप कर सकता है या डेटाबेस को मैनेज कर सकता है उसे हम डेटाबेस डेवलपर या डीबीए बोलेंगे। ओके, और द पर्सन डेवलपर जो ये तीनों एप्लीकेशन डील कर सकता है, मतलब वो तीनों एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, वैसे बंदे को हम बोलेंगे फुल स्टैक डेवलपर। तो आपने ये टर्म्स तो मतलब सुना ही होगा, फ्रंट एंड की जरूरत है, बैक एंड की जरूरत है, या फुल स्टैक की जरूरत है हमारे कंपनी में। सो उनको कोई एक आना चाहिए। जैसे क्लाइंट में एक रिएक्ट आ गया तो इट्स इनफ, सर्वर में अगर उनको नोड एक्सप्रेस आता है मोर देन इनफ, अगर डेटाबेस में उनको एक मोंगोडीबी पता है, दैट्स इट। ना वो पूरा एक वेब एप्लीकेशन बना सकते। जो इंसान पूरा वेब एप्लीकेशन बना सकता है उसे हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। सो ये फुल स्टैक डेवलपर को इतना डिमांड क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कंपनी को ये 3 डेवलपर की जरूरत है। सपोज उसने फ्रंट एंड डेवलपर को हायर किया और उसको उसने 8 लाख का पैकेज दिया, 8 LPA। उसने बैकएंड को भी डेवलप मतलब हायर किया, उसको भी वो 8 LPA का पैकेज दे रहा है। उसने डेटाबेस को भी डेवलप किया, उसको भी वो समथिंग लाइक 10 LPA का पैकेज दे रहा है। अब कंपनी कितना स्पेंड कर रहा है ये 3 डेवलपर्स के ऊपर? 8 8 16 plus 10 26 lakhs. So company is spending
26 lakhs per annum. तो कंपनी क्या करेगा, वो बोलेगा हमें अलग अलग डेवलपर नहीं चाहिए, हमें बस एक डेवलपर चाहिए जो सारा चीज हैंडल कर सकता है. मतलब हमें एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, और वो फुल स्टैक डेवलपर को मैं 18 LPA पे कर दूंगा. तो अब कंपनी कितना अमाउंट बचा रहा है? ऑलमोस्ट दे आर सेविंग 8 lakhs, राइट? दैट्स व्हाई दिस स्टार्टअप्स और मीडियम स्केल कंपनीज वांट्स फुल स्टैक डेवलपर्स. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सब सारे कंपनी को जरूरत है. जिसके पास फंड कम है, या जिसको ज्यादा डेवलपर्स नहीं रखना है, या एक डेवलपर से काम चल सकता है, तो वो सारे कंपनी फुल स्टैक डेवलपर्स को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं. एक रीजन वो है. दूसरा रीजन क्या है? जैसे उन्होंने तुमको क्लाइंट साइड के लिए हायर किया, तुम क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहे हो, सडनली उस दिन बैकएंड डेवलपर अवेलेबल नहीं है, या कोई प्रॉब्लम से वो बैकएंड डेवलपर अवेलेबल नहीं है, बट बैकएंड में कोई काम आ गया, तब आप जाके उस पर काम कर सको. मतलब जब सिचुएशन डिमांड करे, यू कैन वर्क ऑन बैकएंड और फ्रंट एंड. सेम सिनारियो गोज वाइस वर्सा. आप बैकएंड डेवलपर हो, आप बैकएंड पे काम कर रहे हो 7-8 महीने से, सडनली वो फ्रंट एंड डेवलपर अवेलेबल नहीं है, बट कुछ चेंज करना है अर्जेंटली. अब वो तो अवेलेबल नहीं है, तो वो डिले तो नहीं कर सकते, तो आप वहां पे जाके उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि आपको इसका भी नॉलेज है, इसका भी नॉलेज है. इसलिए ज्यादा कंपनी लाइक फुल स्टैक डेवलपर्स को ज्यादा डिमांड होता है. वो एक ही रीजन है. बट एज अ फ्रेशर, आप जैसे अगर फ्रेशर हो, तो कभी कंपनी आपको फुल स्टैक का रोल नहीं देगा. कभी कंपनी आपको सारे इस चीज पे काम भी नहीं करवाएगा. इवन स्टार्टअप में वो पहले आपको एटलीस्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक कोई एक चीज पे काम करवाएगा. अगर आप उसको बोलोगे मैं फुल स्टैक डेवलपर हूं, तो वो क्या करेगा, बस आपको कोई एक चीज पे काम करवाएगा 1 ईयर तक. इसलिए हमेशा यू हैव टू स्टार्ट विथ वन. कोई भी आप चूज कर लो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, बट स्टार्ट विथ वन. 1 साल के लिए उस चीज पे ही काम करो. 1 साल के बाद फिर आप दूसरे इसमें चेंज कर सकते हो, ताकि आपको नॉलेज मिले. फिर 1 साल दूसरे पे भी काम करोगे, इस पे भी काम करोगे, तो आपको जब 2 इयर्स या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे. बट स्टार्टिंग में डोंट फोकस ऑन फुल स्टैक डेवलपर, एज माय एडवाइस. तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये फाइंड आउट किया. अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिएक्ट सीख रहे हैं, राइट? वी आर लर्निंग रिएक्ट. सो रिएक्ट का मतलब हमारा फोकस क्या होगा? टू डेवलप दिस क्लाइंट एप्लीकेशन. हम रिएक्ट सीख रहे टू डेवलप दिस क्लाइंट एप्लीकेशन. अब ये सर्वर एप्लीकेशन, डेटाबेस, वो हम नहीं सोचेंगे, वो कोई और डेवलप करेगा. एज अ क्लाइंट डेवलपर हमें इनकी जरूरत भी नहीं है. हमारा जब फोकस होगा, ये क्लाइंट एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करे, कैसे ये यूजर इंटरफेस बनाए, कितना अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाए, ये हमारा पूरा फोकस होगा. तो ये पूरे वेब एप्लीकेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू डेवलप दिस क्लाइंट एप्लीकेशन. रिएक्ट जे सीख जाओगे, तो आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो जॉब? यू कैन अप्लाई द रोल फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स. सो आप फ्रंट एंड डेवलपर्स बन जाओगे एक बार आपने रिएक्ट सीख लिया. एंड यू कैन अप्लाई द जॉब्स फॉर फ्रंट एंड डेवलपर. इज इट क्लियर नाउ व्हाई वी आर लर्निंग रिएक्ट, और हम रिएक्ट के साथ क्या कर सकते हैं? एनीवन हैव एनी डाउट्स? या No, कोई चीज में कंफ्यूज हुआ आप? कोई एनी पॉइंट यू गॉट कंफ्यूज्ड? Okay, just guys, just try to reply no, no, yes, yes, whatever. If even if you get confused, कहीं पे अगर एक जगह पे भी कंफ्यूज हो गए, प्लीज आस्क दैट. डोंट थिंक दैट इफ आई आस्क समवन विल laugh और व्हाट सर विल थिंक. डोंट थिंक ऑल दैट. ओके, अगर आप ये अभी सोचोगे ना, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा. नाउ वी आर इन द लर्निंग स्टेज. लेट्स क्लियर एवरीथिंग, वॉट एवर डाउट्स वी गेट. ओके, ग्रेट, डन. सो फाइनली वी कम टू नो, हमें ये पता चल गया कि यार हम तो क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं. So we are going to develop a client application. So now our focus will be completely on how to develop this client application. पर ये client application में हम क्या डेवलप करते हैं? हम यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं. What we are going to develop? We are going to develop user interface. यूजर इंटरफेस क्या होता है?
all the button, text box, links, images, videos, audios, some text in paragraph, some text like title, all these are called user interface. So we are going to build this entire user interface or entire client application using React. Now you can choose Angular also. It's not mandatory you have to go with React. Now the people who will learn Angular, what they are going to learn? They are going to learn same thing, how to develop client application, how to develop user interface. But technology alag hai. Purpose is same. Purpose is to develop client application. Purpose is to develop user interface. Apart from that, nothing. Okay. So for that we choose React, not Angular or Vue. So हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा पूरा फोकस होगा रिएक्ट पे. डन. अब रिएक्ट सीखने के लिए हमें ऑब्वियसली पता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए. बट एज इन आवर सेशंस हमारे इंस्टीट्यूट पे हम जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं बोलते, बस तुम्हें HTML, CSS का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्सपर्ट हो. नो नीड टू बी एक्सपर्ट. स्लोली स्लोली आप जैसे रिएक्ट सीख रहे हो, स्लोली स्लोली डेली एक कॉन्सेप्ट HTML पे, एक कॉन्सेप्ट CSS पे ऐसा फोकस करते हुए उसको तुम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. बट अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो यू आर रेडी टू स्टार्ट विथ योर रिएक्ट बैच. दैट्स इट. सो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट HTML, CSS का बेसिक नॉलेज हो. लाइक आपको पता होना चाहिए टैग का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए HTML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आपको पता होना चाहिए CSS के प्रॉपर्टीज कैसे लिखते हैं. दैट्स इट. बाकी का मैं सब देख लूंगा. बस आपको ना दो ही चीज करना है, आपको रेगुलर होना है, क्लास में रेगुलर रहना है और प्रैक्टिस करना है. जो भी असाइनमेंट मिलेगा, जो भी हम क्लास में एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको वो प्रैक्टिस करना है. जैसे से आप बस 45 या 30-40 डेज करो, दैट्स इट, यू विल लैंड ऑन वेरी गुड जॉब. दैट्स आई एम प्रीटी श्योर. मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं, अगर आप सब अच्छे से करोगे तो आपको 3 इयर्स डेवलपर का नॉलेज आएगा. मतलब एक 3 इयर्स बंदे के पास जितना नॉलेज होगा रिएक्ट पे, अगर कोई बंदा 3 साल से रिएक्ट पे काम कर रहा है, उसके पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज आपको आएगा. भले फ्रेशर पे अप्लाई करोगे जॉब, बट आपको 3 इयर्स बंदे का काम भी कर सकते हो. अगर कंपनी ने आपको 3 इयर्स बंदे का काम दिया तो आप, यू गाइज विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब. इतना नॉलेज मिलेगा आपको. द ओनली थिंग, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 इयर्स नॉलेज का, 3 इयर्स पर्सन का नॉलेज लेना, उसके नॉलेज के बराबर जाना है. तो आपको पता है कि कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा. ओके, डन. सो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो, कुछ हो तो बता दो. चलो, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ जावास्क्रिप्ट. सो अभी के लिए हम रिएक्ट को बाजू में रख देते हैं. बस हमने रिएक्ट का पर्पस देख लिया कि रिएक्ट से हम क्या डेवलप करते हैं. सो हमारे फर्स्ट फ्यू सेशंस, थोड़े सेशंस हमारे जावास्क्रिप्ट पे होंगे. तो हमें पहले जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, थोड़ा जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए. सो अवर इनिशियल क्लासेस विल बी ऑन जावास्क्रिप्ट. एक बार हमें जावास्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस आ गया, देन वी विल मूव टू द रिएक्ट. देन फिर रिएक्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट. Okay, so before starting with JavaScript, can you guys tell me what is the purpose of HTML and CSS? What is the purpose of HTML and CSS? HTML और CSS हम क्यों यूज करते हैं और इनका पर्पस क्या है? किसी को idea? HTML is used to structure the page, Okay, and CSS is used to design it. exactly. और कोई आंसर किसी के पास? वैसे इनका आंसर एकदम राइट है. CSS is used for styling, and HTML is used for we can say like the skeleton of the website is made through HTML. Okay. Anyone else have any answer? Okay, fine. So हम क्या करते, एक वेब पेज बनाते. ओके, एक वेब पेज. ए वेब पेज का मतलब क्या है? व्हाट इज वेब पेज? कोई भी पेज ऑन आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जैसे अब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, ये जो आप देख रहे हो ना, एक वेब पेज है. जैसे मैं फेसबुक पे जाऊंगा, ये क्या है? एक वेब पेज है. इस वेब पेज पे क्या कर रहे हैं हम? कुछ कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं.
ओके, कुछ कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं। सो कोई भी वेब पेज पे अगर तुम्हें कंटेंट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें HTML की जरूरत है। तो व्हाट इज HTML? HTML is a language which is used to present some content on this web page or structure the content on web page. Structure the content का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है जैसे ये कंटेंट थोड़ा सा बोल्ड साइज में है, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, राइट? ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा मतलब अच्छा है। इफ यू गो विद दिस लिंक इज लिटिल बिट स्मॉल। ये मतलब सारे कंटेंट को हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रहे, इसको मतलब बड़े साइज में दे रहे, इसको थोड़ा सा छोटे साइज में दे रहे, एक इस कंटेंट को हम बॉक्स साइज में दे रहे, इसको हम लिंक साइज में डिस्प्ले कर रहे। तो कुछ स्ट्रक्चर में कुछ कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे। तो अगर किसी भी कंटेंट को तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करना है या वो स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें HTML की जरूरत है। तो यूजिंग HTML वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द कंटेंट। अब उसी कंटेंट को हमें स्टाइल देना है, जैसे कुछ उसका कलर चेंज करना है, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देना है कि थोड़ा सा कंटेंट लेफ्ट में हो, थोड़ा सा कंटेंट राइट में हो, या कंटेंट टॉप पर हो या सेंटर में हो, ऐसा उसको स्टाइल बनाना है। तो उसके लिए हमें CSS की जरूरत है। So what is HTML? HTML is used to structure the content on web page. उस कंटेंट को इस वेब पेज पे स्ट्रक्चर करना, उसको HTML बोलते, और उसी कंटेंट को स्टाइल करना ऑन दिस वेब पेज, उसके लिए हमें CSS की जरूरत है। So I hope it is clear HTML और CSS का काम क्या है। उसी तरीके से अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? ये जो वेब पेज है ना, इसको डायनामिक बनाना, इसको डायनामिक बनाना। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक बनाना और व्हाट डू यू मीन बाय मेकिंग इट डायनामिक? जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो इस पे, या जैसे मैंने एक बटन पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया, या मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये कलर चेंज हो गया, और या मैं किसी लिंक पे क्लिक किया तो दूसरा कोई वेब पेज आ गया। मतलब तुम्हारे इस वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाना है, इसको पूरा डायनामिक बनाना है। तो अगर हमें किसी वेब पेज को डायनामिक एंड इंटरैक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है। तो नॉट ओनली दिस रीजन, बहुत सारे रीजन से जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होता है, हम वो सारा रीजन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको वैसा वैसा समझ में आने लगेगा कि जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सो अभी के लिए हमें इतना जानना है, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू मेक अवर वेब पेज डायनामिक। HTML and CSS used, HTML and CSS makes our web page static. Static का मतलब है कि आप जो देख रहे हो वही कंटेंट रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर मैं ये लॉगिन पेज ओपन करूं, ओके, अब अगर ये लॉगिन पेज ओपन करूं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सेम कंटेंट देख रहे हो। अगर ये पेज को मैं अगर 100 टाइम्स ओपन करूंगा, 100 टाइम्स आप सेम कंटेंट देखोगे। कोई भी पेज में जहां आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हो ऑन सम बटन क्लिक या समथिंग डूइंग सम ऑपरेशंस, इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज दैट कंटेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक पेज। डायनामिक पेज का मतलब होता है कि आप बटन क्लिक कर रहे हो और उस पेज में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, या कलर चेंज हो रहा है, या टेक्स्ट चेंज हो रहा है, या कुछ एनिमेशन आ रहे, उसको हम डायनामिक बोलते हैं। तो हम HTML और CSS से सिर्फ स्टैटिक वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। When it comes to JavaScript, हम डायनामिक वेब पेज डेवलप कर सकते हैं। अब डायनामिक वेब पेज कैसे डेवलप करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वही हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। जस्ट बिफोर लर्निंग एनी टेक्नोलॉजी यू शुड बी क्लियर विथ योर पर्पस। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी पढ़ने से मैं क्या कर सकता हूं और ये टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है। So is it clear purpose now? What is the purpose of HTML, CSS and the purpose of JavaScript? Yes. Yeah. Yes, So if someone asks you what is JavaScript, just tell them that this definition. JavaScript is a programming language. Before 2015, it was only scripting language. अब वो scripting language नहीं रहा, अब वो बहुत सारा अपग्रेड हो गया। अब जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, पहला आंसर आना चाहिए जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक योर
application dynamic, or your website dynamic. What is JavaScript? This is a programming language. उसका पर्पस क्या है? To make your application dynamic. ये मेन पर्पस है. अगर इसको ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है? एनीवन नोस व्हाट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जहां पे आपको जावास्क्रिप्ट का सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है? ऑफिशियल वेबसाइट वो है तुम्हारा MDN. सो जस्ट आप जाओ जावास्क्रिप्ट एंड MDN करके सर्च करो. ओके, developermozilla.org, ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जावास्क्रिप्ट है. ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब है जो भी जावास्क्रिप्ट में चेंजेस होगा वो सारा इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में होगा. ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट है. आप देखो यहाँ पे द फर्स्ट लाइन, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेटेड इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो खुद बोल रहे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो कभी कभी किसी ने पूछा जावास्क्रिप्ट इज ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगर ये स्टेटमेंट आया जस्ट टेल देम दैट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. So what is the difference between scripting language and programming language? Scripting language are those language which can run on your browsers, but programming language are something which can take some input, which can process some input, and which can give you some output, and which can be used outside of your browsers also. Now such languages are called programming languages. Okay, that's it. हमने बस पर्पस देख लिया. व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड टू मेक योर एप्लीकेशन डायनामिक. अगर हमारे एप्लीकेशन को हमें डायनामिक बनाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत है. अगर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन को डायनामिक बनाता है तो तुम्हारा रिएक्ट भी एप्लीकेशन को डायनामिक ही बनाता है, क्योंकि इंटरनली रिएक्ट तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को ही यूज कर रहा है. रिएक्ट को जो हम बनाए, जिसने भी रिएक्ट को बनाया, फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया तो उसने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनाया है. Okay, so what we have covered in today's session, like what is web application, purpose of web applications, examples of web application, a high level architecture, a basic architecture of web application, like web application कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और कौन सा पार्ट किस टेक्नोलॉजी से डेवलप कर सकते हैं और उस पार्ट का पर्पस क्या है, हमने वो सीखा. और फाइनली हमको ये पता चल गया कि हम सिर्फ क्लाइंट साइड पे फोकस करने वाले, और वो भी थ्रू रिएक्ट. तो हम रिएक्ट जेएस सीखने वाले टू डेवलप अ क्लाइंट एप्लीकेशन, टू डेवलप अ यूजर इंटरफेस. फिर उस डिस्कशन से वी जस्ट केम टू द जावास्क्रिप्ट. हमने ये देखा व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML CSS. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. आज के लिए इतना बस है. सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन आवर टुमारो सेशन. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. किसी को कोई डाउट्स? Sir, what is the difference between React Native and React.js? Like where we have to use React.js and where we have to use React Native? Yeah, React.js is used to develop web applications.